Postcolonial criticism. Introduction. Postcolonialism and imperialism are the ideas that were present forever in the world from the ancient times, but it is only in the 20th century that it has been given a serious thought. Okay, now in 20th century, we see that it has developed as a critical theory. The way we look at a text, the way we try to interpret a text. And what do we do in postcolonial criticism? I told you that what do? We look at the textual tensions which are there, and we talk about the encounter between the colonizer and the colonized. I already talked about Britain, which was also a colony of the Roman Empire, and after that we see all the other kind of things. We see that Europe also colonized more than half of the world, and it was said that the sun never sets on the British Empire. Okay, because in India it was the morning, and in Britain again it was the morning, the next 12 hours. So they said that the sun never sets on the British Empire. Now, imperialism is a different thing and post-colonialism is a different thing. Imperialism actually talks about the forceful capture of a land, okay, like that used to happen during the reign of kings. Okay, one used to conquer the other place and try to make it their own region and try to take control of the people, the culture, and the place as well, geographically speaking. The imperialism was supported by many ideas such as the white man's burden, the West as the only source of knowledge and wisdom, etc. Post-colonialism began as a reaction to such representation of the East in literature. So post-colonialism actually began as a critical theory because certain people actually raised their concern over how the Eastern people have been projected इन लिटरेचर, कि उन्हें किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है लिटरेचर में. एंड दे सेड कि नहीं, हम इस तरह के एग्जॉटिक नहीं हैं, हम इस तरह के मिस्टीरियस टाइप के नहीं हैं. ठीक है. सो इट काइंड ऑफ बिगेन एज अ रिएक्शन टू सच रिप्रेजेंटेशन, कि ऐसा रिप्रेजेंट उनको क्यों किया गया है वेस्टर्न वर्क्स में. ठीक है. पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स लुक फॉर द वेज ऑफ ऑपरेशन, कि किस तरह से ऑपरेस किया गया. रेजिस्टेंस, हाउ दे ट्राई टू रेजिस्ट दैट ऑपरेशन, कि कितना उन्होंने, जितना उनको दबाया जा रहा था उसको कितना उन्हें रेजिस्ट किया. एंड एडेप्टेशन, एडेप्ट क्या क्या किया. एडेप्ट भी तो किया ना काफ़ी कुछ. आधे इंडियंस ऐसे थे जो जिन्होंने बिल्कुल इंग्लिश जो अटायर था वो इम्बाइब कर लिया था, इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट किया. ठीक है, कई सारी चीज़ें उन्होंने की थी. देन there were some people who were still wearing khadi and kurta and all those things. So how much adaptation they had actually gone through. Then from the moment the colonizer and colonized came into contact, कि जब से दोनों लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए तो कितना एडेप्टेशन हुआ, कितना रेजिस्टेंस हुआ, और कितना उनके वेज ऑफ ऑपरेशन क्या क्या थे. अब देखो वेज ऑफ ऑपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है पता है. बिकॉज लैंग्वेज इज पावर. वंस यू कंट्रोल समवंस लैंग्वेज, you control his psyche, his mind, because you control the ways he is thinking, the way he is going to express himself. अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज कर देगा और किस तरह से सोचेगा, जैसे कॉलोनाइजर सोच रहा है. colonialism means settling colonies, exploiting natural resources of these people. okay, एक सेटलर है और एक है नेटिव. सेटलर कौन है, जो वहाँ पे आके सेटल हो रहा है, यानी कि द कॉलोनाइजर. एंड हिज एनकाउंटर विद द नेटिव पर्सन. नेटिव पर्सन जो बिल्कुल उसकी नज़र में क्या है, अनसिविलाइज्ड है, बारबेरस है, ही डजंट नो एनीथिंग, और उसका कल्चर वो उसके लिए क्या है, इन्फीरियर है. स्पेशली अफ्रीकन लोग और इंडियंस, चाइनीज़, इन सबको ये लोग इसी नज़रिए से देखते थे, यूरोप वाले. ठीक है, द वेस्टर्न पीपल. सेकेंड इज इम्पीरियलिज्म. अभी मैंने समझाया आपको कि इट इज़ टू रूल बाय मिलिट्री फोर्सेस, एक्सपेंशन. पोस्ट कॉलोनियलिज्म और पोस्ट हाइफन कॉलोनियलिज्म, ये मैंने आपको बताया कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज अ थियरी. पोस्ट कॉलोनियलिज्म इट काइंड ऑफ रेफर्स टू अ टाइम पीरियड जिसमें एक पोस्ट मतलब आफ्टर, कॉलोनियलिज्म मतलब कॉलोनियल टाइम्स के बाद, जब कॉलोनाइजर तो चला गया है पर उसका इफेक्ट अभी भी है, इन विच वी आर लिविंग राइट नाउ. पोस्ट कॉलोनियल में रह रहे हैं हम अभी. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म और एम्बिगुअस भी है. कई लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, पर मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि कभी इंटरव्यू में पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया, तो यू विल नो कि व्हाट टू आंसर. इसको मैं और थोड़ा पढ़ के लेके आऊँगी तो बताऊँगी दोबारा. देन
देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ कॉल्ड नियो कॉलोनियलिज्म. इसको मैंने लास्ट स्लाइड में किया है एक्सप्लेन, वो मैं बताऊंगी बाद में आपको. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म. अब नियो कॉलोनियलिज्म क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ. When these colonies, they have gone from this place, but they have taken so much from these places that they know this place what these people want. पहले उन्होंने उन सब चीज़ों की यहाँ आदत लगा ली लोगों को, और उसके बाद वो वही सब चीज़ें एक्सपोर्ट करके यहाँ बेच रहे हैं. तो इट इज़ काइंड ऑफ कंट्रोलिंग द मार्केट. अभी ऐसा है कि यहाँ भी कई सारे लोग कस्टम वगैरह देके बाहर का सामान मंगाते हैं कि वहाँ की क्वालिटी बेटर होती है, ये होता है वो होता है, मे बी होता भी होगा. ओके, बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉलोनियल. अब एक दूसरी तरह का कॉलोनियलिज्म चलता है. तभी तुमने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले बैन हो गया था चाइना का सामान और चाइना के फ़ोन, है ना. हाँ, काफ़ी सारी साइट्स भी बंद हो गई थी. शाइन क्या है, शीन एक चलती थी ना साइट, तो वो भी हाँ, अली एक्सप्रेस और ये सब बंद हो गई थी. सो इट वॉज अ वे ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल दिस नियो कॉलोनियलिज्म. तो नाउ कॉलोनी इज़ ऑल अबाउट मेकिंग प्रॉफिट, है ना. कॉलोनी का मतलब ही क्या था, पहले भी नेचुरल रिसोर्सेज ही लेने के लिए आते थे यहाँ से. हाथी दांत लेके जाते थे, सोना लेके चले गए, कोहिनूर लेके चले गए भारत का, और क्या क्या चीज़ें लेके चले गए. तो उस टाइम पे नेचुरल रिसोर्सेज. अभी दे आर टेकिंग अवर मनी, दे आर टेकिंग अवर पीपल, और वहीं से फिर ये ब्रेन ड्रेन वाली प्रॉब्लम भी सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर चले जा रहे हैं नौकरी करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए. ठीक है. देन डीकोलोनाइजेशन इज़ अनदर थिंग. डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कॉन्शियस डिनायल ऑफ कॉलोनियल इफेक्ट्स. जब हम डिनाई करते हैं कि नहीं, मैं लिखूंगी तो मैं हिंदी में ही लिखूंगी, मैं बोलूंगी तो हिंदी में ही बोलूंगी, ऐसा. ठीक है. इस तरह के डेरेक वॉलकॉट और वोले सोइंका दो ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपनी ही, उनकी कुछ एक लैंग्वेज है क्रियोल या पता नहीं क्या, तो उसी में ही वो लोग लिखते हैं. ठीक है. एंड दे ट्राई टू कॉन्शियसली avoid using English language. They still use their mother tongue or whatever it is. ठीक है. So it is kind of a conscious denial कि no, we are not going to do this. No, we are not going to adapt these things. तो वो जो colonial effect है ना, उसको एक तरह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, we need to keep our roots alive. We need to keep our things going. Okay, like before. The next slide is division of the world. देखो, देर आर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ एंड फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज़. फर्स्ट वर्ल्ड में तो ब्रिटेन, यूरोप और यूएसए, जापान, ये सब आगे जो बिल्कुल एडवांस्ड हैं और बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. सेकेंड वर्ल्ड में आ जाते हैं आपके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और रशिया और चाइना. ये थोड़े से कम डेवलप्ड हैं, पर इनको ये मानते हैं डेवलप्ड फील्ड बिकॉज वाइट पीपल आर लिविंग देयर. ओके, रिमेंबर दिस. ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग. जब हॉलोकॉस्ट हुआ था ना यूरोप में, Hitler cleared 500,000 or more than a million people. He killed them because he believed in the supremacy of white race. वो कहता था कि नहीं, बाकी सब बेकार है, तो इतने सारे ज्यूज़ को मरवा दिया था. He was a Christian and he supported Christianity so much. He believed in racial supremacy so much कि हमारी रेस क्या सुपीरियर है वाइट लोगों को रहने. तो उसने क्या करा दिया था, इतने लोगों को बिल्कुल ही मास में मरवा दिया था. ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ वाइट मैंस बर्डन और ये सब चीज़ें. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आती है डेवलपिंग कंट्रीज़ एज इंडिया, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. वहाँ भी क्योंकि नीग्रोज हैं ना, रेड इंडियंस कहते थे जिनको पहले. ठीक है, वो लोग रहते हैं. एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, ये रहते हैं. एंड फोर्थ वर्ल्ड में है नेटिव पॉपुलेशन सब्जुगेटेड बाय द मेजॉरिटी कल्चर दैट सराउंड्स देम लिविंग इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़. तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में यानी कि ब्रिटेन, यूरोप, यूएसए, जापान में जो कंट्रीज़ रह रही हैं, अभी जो लोग रह रहे हैं, पर वो लोग अभी भी मार्जिनलाइज्ड हैं क्योंकि वो सेंटर पे नहीं है. दे आर डायस्पोरिक पीपल, इंडियंस लिविंग देयर. हाँ. सो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स. ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स. सो दोज पीपल, even Dalits in India, they are also considered the fourth world literature. Okay. नेक्स्ट इज कॉलोनियल डिस्कोर्स, जो मैंने आपको बताया. 3 चीज़ें हैं इसमें. represents the language in which the colonizers express their superiority and they legitimized the colonial rule. उन्होंने लेजिटिमाइज किया ना, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको यहाँ सिविलाइज बनाने के लिए आए हैं, जैसे इंडिया में आकर के उन्होंने कहा था. फर्स्ट इज वाइट मैन्स बर्डन which is to civilize the barbarous native. Now, second is Eurocentrism. We have talked about this, that Europe is the center of everything. European people are more experienced. They know more than the Orientals, okay, the people who are living in Asian countries, the third world countries and fourth world countries, fourth world people, okay. And European history is treated as world history.
एंड ओनली देर इज़ वन मोर आयरनी कि वर्ल्ड वॉर हम उसको बोलते हैं जिसमें आधे से ज़्यादा तो वर्ल्ड की कंट्रीज इन्वॉल्व ही नहीं थी. इट वॉज ओनली बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, राइट? So it is also a kind of thing that needs to be taken needs to be questioned and needs to be taken considered, okay, by the people who are using this term. It is used as World War the first, second, but the whole world was not involved in that. The third thing is Orientalism, where the East is seen as other and East is seen as the exotic other. Exotic means someone who is very mysterious, seductive even. Like in the case of Aziz, जैसे मैंने बताया, A Passage to India में उसको इस तरह का present किया है. Then mass identity, not individual. They call that, oh, these Indians are like this. Oh, these Indians are so lazy. They don't know how to speak. They don't know how to do this. And you know what they do? They live their lives like this. They eat like this. They eat so much spices and all those kind of things. You know, they don't know our culture. They don't know what our bodies need. We have also adapted according to our needs, but they don't understand this. But they have sometimes been represented that way in their literature. Okay, they have not lived with us, they have not understood our culture, they have only been here for 1 or 2 months and they have written about us. Okay, so that is the irony. So whenever they talk about us, they call us by collective nouns and by the way of plurality. Okay, the Indians are always like this, okay. Next is a picture. In this, the editorial cartoon, The White Man's Burden, shows John Bull, Britain, and Uncle Sam, US, delivering the world's people of color to civilization. तो देखो ये पहाड़ी की तरफ लेके जा रहे हैं ना, ऊपर देखो जीसस क्राइस्ट बना हुआ है यहाँ पे. ओके, सो देयर इज जीसस क्राइस्ट बने हुए हैं एंड ये लोग उनको लेकर के वहाँ जा रहे हैं. इधर जॉन बुल, ब्रिटेन के लिए ये यूज़ किया जाता है, और अमेरिका के लिए अंकल सैम. कई बार है ना, एक स्लैंग वर्ड है तो वो यूज़ किया जाता है. और ये लोगों ने देखो अपनी टोकरी में किसको भरा हुआ है? ब्लैक पीपल, अफ्रीकन्स, ठीक है. एंड दे आर, देखो यहाँ पे लिखा भी है साइड में मैंने, delivering the world's people of color to civilization. The people in the basket carried by Uncle Sam are labeled Cuba, Hawaii and the Philippines. तो इन लोगों को लेके जा रहे हैं अंकल सैम अमेरिका, और ब्रिटेन वाले किसको लेके जा रहे हैं? इंडियंस को, चाइना वालों को. ठीक है. हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ी होगी. हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी यही होता है ना, दे ट्राई टू सिविलाइज दोज पीपल. जब कॉनराड भी एक तरह से जब बात करता है ना उन लोगों के बारे में, ही टॉक्स अबाउट देम इन सच अ वे एज इफ ही इज़ टॉकिंग अबाउट एनिमल्स. जैसे वो बोलता है कि ही 7 feet लॉन्ग, और ऐसे 7 feet टॉल नहीं बोलता है आदमी की तरह, बट इट इज़ लाइक लॉन्ग एज इफ वी आर ट्राइंग टू मेजर एन एनिमल. ठीक है. इसके नीचे एक और पिक्चर है, इसमें देखो कि ये जो एक व्यक्ति है यहाँ पे, इसको पकड़ के, ये जो ब्लैक कलर का एक गोरिल्ला टाइप का है, इसको पकड़ के इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी आंखें एकदम कैसी हुई हैं? ब्लैंक हैं, एज इफ ही डजंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड द अदर पर्सन नोज एवरीथिंग, ट्राइंग टू कंट्रोल हिम. ओके, सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग these people and their relationship and the way they look at these. Next slide is some important critics. We have talked about here Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, उनका एक वर्क है. ब्लैक स्किन्स वाइट मास्क है, और इस वर्क में ना एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बोली है, हमारे कोर्स में था व्हेन आई वाज इन MA. तो उसमें वो बोलता है कि when the colonizers treat the colonized people, sometimes they do a bad kind of behavior. They don't treat them well, but sometimes they treat them with so much humanitarian way that we feel pity for the colonized. तो किसी के साथ अगर आप अच्छा बिहेव करो वो अलग चीज़ है, but when it takes a very sympathized kind of look, it is also wrong. He says that please treat us like humans, don't treat us like a child. उसमें एक एग्जांपल देता है कि एक वाइट लेडी जो है वो एक ब्लैक मैन है, उससे ऐसे बात कर रही है एज इफ शी इज़ टॉकिंग टू अ चाइल्ड, कि अरे से समझ में नहीं आएगा, और मैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से यू नो दिस एंड दैट, और इस तरह से वो उसको बता रही है. तो फ्रेंड्स फैनो यहाँ पे बोलता है ट्रीट देम एज ह्यूमन्स.
not below the humans, not below your humanitarian attitude. Don't do it like that. Don't treat them as child, treat them as equals. So that is also wrong. When you try to be very polite, extremely polite with a person, in that way also you are considering yourself superior and talking about the other person as the inferior one. Okay. Second work is Edward Said's Orientalism. It was published in 1978. Then Gayatri Spivak, In Other Worlds, Bill Ashcroft and Helen Tiffin, The Empire Writes Back, and then Homi Bhabha's Nation and Narration, Edward Said ka Culture and Imperialism. We are not going to talk about these works much. Next slide is about Edward Said. We are going to talk about the thing which is called Orientalism. It is a concept, and we are going to understand what does the Occident people think of the Orient. Okay, so Orientalism is the understanding of the Orient by the Occident, कि Occident उन्हें क्या समझते हैं, किस तरह से उन्हें अपने वर्क में represent किया है. And the misconceptions also. ये misconceptions क्या है? क्या यहाँ के लोग ही हमेशा exotic हैं? हम भी तो वहाँ के लोगों को कई बार देखते हैं ना, बिल्कुल वो किस तरह से अपने आप को represent करते हैं, hippie life जीते हैं, उस तरह का, वो हमारे लिए भी exotic है. Okay, but they have always written about us in that way, that they have represented us as, or they have presented us as exotic and the mysterious ones. There is an stereotyping of the black and brown. Black people, brown people, इन लोगों को लेके एक stereotyping है. Stereotyping मतलब किसी को हमेशा एक ही तरह से present करना. जैसे feminist theory में भी है कि women have always been presented as very nurturing, caring, पर अगर नहीं है तो क्या वो बुरी है? तो वही चीज़ है ना उसमें. देखो, ये जो इस तरह के वेज होते हैं representation के, जो misconceptions होते हैं, they have led our society to a kind of downfall, and the same kind of stereotyping has been there in post-colonial literature. Now they consider us inferior, the other, and shadow of the self. ओके, शैडो क्या है? इन्फीरियर ओरिएंट है, और द सेल्फ क्या है? द नॉलेजेबल वेस्टर्नर. कि हम तो सेल्फ हैं और ये क्या है? हमारा शैडो है, विच इज़ नॉट एक्चुअली द केस. इट इज़ देयर पर्सपेक्टिव, नॉट अवर्स. नाउ ओरिएंटलिज्म इज एन इन्वेंशन ऑफ द वेस्ट when it defines itself in positive terms. ठीक है, ओरिएंटलिज्म को अगर अच्छे से एक शब्द में, एक सेंटेंस में अपने समझाना हो तो ये है कि when the Occident people, the Western people present themselves in positive terms, और हमें वो किस में एक तरह से प्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव टर्म्स में, inferior way में प्रेजेंट करते हैं. So that this person Edward Said has said to talk about the Orient is Orientalism. Whenever you talk about the Orient, it is Orientalism. If you are going to talk about the Eastern people in a collective manner, तो वो Orientalism है. It means you are also getting affected by this kind of a theory or idea. So do not talk about them as if you are talking about the Orient. Talk about them as an individual. Never the same thing happens here in India, that we talk about certain castes or certain people in collective manner, कि ये तो ऐसे ही होते हैं, या ये तो ऐसे ही, ये तो बहुत arrogant होते हैं, या ये बहुत बुरे होते हैं, of the people of a certain region, कि अरे साउथ वाले तो ऐसे ही होते हैं, साउथ की तो मूवीज़ ऐसी होती हैं, बॉलीवुड की तो. So talking about something collectively is not the solution and also is not the right thing. Talk about a thing individually, talk about a thing in particular, in a specific way. Whenever you are going to talk or about anything collectively, you are going to misjudge things. Next is Homi Bhabha. He was an Indian again, and he has talked about hybridity and mimicry. He has given two terms just to understand his theory. Hybridity का मतलब है कि उनका जो एक तरह से हाइब्रिड बन जाएगा. माइंड में दोनों तरह की चीज़ें चल रही हैं अब. ठीक है, जो कॉलोनाइज़र ने कहा है वो भी चल रहा है, और जो कॉलोनाइज्ड है ऑलरेडी ना, तो उसकी जो अपना जो कुछ उसने इम्बाइब किया है बचपन से, उन दोनों के बीच में है, हाइब्रिड बन गया है. हम सब क्या है? एक तरह से हाइब्रिड हैं, बिकॉज वी थिंक लाइक इंडियंस बट वी वॉन्ट टू एक्ट लाइक वेस्टर्न्स. वी आर नॉट एबल टू डू दैट ऑल्सो, क्योंकि हमारे वैल्यूज़ ही अलग हैं. माइंड का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो तो बिल्कुल अलग ही वे में चल रहा है ना. तो वहाँ पे क्या एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. सो देर इज़ फोर्स्ड कल्चर एंड नीड ऑल्सो. नीड भी है और फोर्स्ड कल्चर. अब तुम साड़ी तो पहन के रोज़ नहीं आ सकती, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मोर कम्फर्टेबल फॉर यू.
ओके, यू विल वियर दैट ओनली. तुम धोती कुर्ता और पूरा साफा बांध के नहीं आ सकते, बिकॉज it is very uncomfortable for you because you have never lived like that. Not fully as the colonizer, also own culture is lost. So there is a double consciousness. Okay, in case of dressing also, okay, the very common one. In case of language, there is a double consciousness. Now the second thing is mimicry. Mimicry is imitating the colonial master, his language, culture and food, social status, everything. We try to live like them. Alienates from own culture. ये भी mimicry की वजह से ही होता है. If you are going to imitate somebody else, you are going to lose your own roots. That is the common thing. And the gap never fills. ठीक है, वो एक गैप आपके अंदर ही आ जाएगा एक टाइम पे, फिर आप सोचने लग जाओगे कि ये मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं. मे बी यू विल गो बैक टू योर रूट्स, मे बी यू विल बी एलियनेटेड, और एलियनेट होकर के अगर आप अपने रूट से रहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल योर सेल्फ. ठीक है, एलियनेशन भी एक बहुत बड़ी थीम है लिटरेचर में. सो देर आर 2 कोट्स दैट आई हैव पुट हियर. फर्स्ट इज शेक्सपियर का है द टेम्पेस्ट से, जिसमें कैलिबन है. एक कैलिबन जो कि एक उसको भी एग्जॉटिक जैसा ही वो ट्रीट करते हैं ना, वो अलग आइलैंड पे रह रहा है और उसको एक तरह से हाफ एनिमल की तरह ही उसमें प्रेजेंट किया है शेक्सपियर ने. So he says, you taught me language and my profit on it is I know how to curse. He says that now I know your language. You taught me your language. I know how to curse you. ठीक है, I know how to say bad words to you. So it is now your long language that I am going to use against you. Okay, ये वो बोलता है. There is one more writer, कमला दास. उनने अपनी पोएम एन इंट्रोडक्शन में कहा है, The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. कि जो लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ वो क्या है, it becomes mine. उनको कई लोगों ने बोला कि इंग्लिश में क्यों लिख रही हो, तो उन्होंने बोला कि वट एवर द लैंग्वेज इज, इट्स क्वेयरनेस, एवरीथिंग इज माइन एंड नाउ इट इज़ माइन, इट इज़ नॉट द कॉलोनाइजर्स, नाउ इट इज़ माइन. शी हैज़ ऑल्सो सेड कि आई थिंक इन 2 लैंग्वेजेस और 3 लैंग्वेजेस ऐसे कुछ. ठीक है, वो कोट, हाँ, रोट इन 2 एंड ड्रीम इन 1, ये है ना. ठीक है, नेक्स्ट इज द थर्ड कॉन्सेप्ट बाय होमी भाभा. इट इज़ एम्बिवलेंस. इट इज़ how both colonizers and colonized address each other. This is also important. The way they are talked, like I talked about the experience, the encounter between the lady and the black man in Frantz Fanon's White Skin Black Mass. Dual behavior of resistance and submission. Fluctuating relationship between mimicry and mockery. तो मिमिक्री कब मॉकरी बन जाती है वो आपको देखने को मिलेगा. अगर आप यूट्यूब पे देखो, सोशल मीडिया में देखो, तो जिस तरह से यहाँ के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ वहाँ के लोगों को इमिटेट कर रहे हैं, उसको भी कई बार उसका मजाक बनाया जाता है. सो मिमिक्री समटाइम्स टर्न्स इनटू मॉकरी. ओके, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिकम लाइक दैट. Mix of attraction and repulsion between colonizer and colonized, and also talking about the white man's burden but not actually fulfilling it. Now, Bhabha gives the example of Charles Grant, who wanted to inculcate Christian values in Indians through conversion, but was afraid that it might make them turbulent for liberty. He proposed to mix Christian doctrines with caste practices to do this partial reform because he did not want to make the Indians the exact replica of the Europeans. अब वो कन्वर्जन भी तो इसीलिए कर रहे थे ना कि हमारा जो क्रिश्चियनिटी है वो ज़्यादा बेटर है और हिंदूज तो अनटचेबिलिटी और इन सब चीज़ों में रह रहे हैं. भले ही वो चीज़ थी बुरी ही, पर उनका भी नज़रिया वो सही नहीं है ना कि आप उनको कन्वर्ट कर दो या कुछ भी कर दो. ठीक है, और वो भी कन्वर्ट वो अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे. तो चार्ल्स ग्रांट ने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू होमी भाभा, ही सेड दैट वी नीड टू मिक्स द क्रिश्चियन वैल्यूज़ एंड इंडियन थिंग्स टुगेदर, और तब जाके और इनकी जो कास्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके संग इनको मिक्स कर दो, तब जाकर के ये लोग अडेप्ट हो पाएंगे. वरना तो ये लोग लिबर्टी के लिए चिल्लाने लगेंगे हमारी तरह और ये हमारे एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाएंगे. दे विल बिहेव लाइक यूरोपियंस. अगर इन्हें प्रॉपर क्रिश्चियन वाला दे दिया तो ये भी दलित लिटरेचर में भी अगर कभी आप पढ़ोगे ना, यू विल सी दैट द पीपल हु कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, दे वर नॉट ट्रीटेड एज ट्रू क्रिश्चियंस. वहाँ पे भी उनको एक अनटचेबल वाला ही जो था ना ट्रीटमेंट वो मिल रहा था. गायत्री स्पिवाक वो क्या बोलती हैं, शी टॉक्स अबाउट कैन द सबाल्टर्न स्पीक.
सबाल्टर्न क्या है? सोशली, पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हायरार्की ऑफ पावर। उनको जो पॉलिटिकल पावर है वो नहीं मिलेगी, रिलीजियस पावर वो नहीं मिलेगी, दे विल नॉट गेट देयर वे फॉर एजुकेशन, और ये जितने भी मेन चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिलेगी। लाइक द लेबरर्स इन अवर सोसाइटी, दलित्स इन अवर सोसाइटी हु आर लिविंग फार अवे। और पहले तो ऐसा भी होता था कि एक गाँव के बीच में ही, सेंटर में ही वो रखते थे मेन लोगों को, और आसपास इधर जो आउटस्कर्ट्स होती थी विलेज की, वहाँ रहते थे दलित्स। ठीक है, एक सिस्टम ऐसा भी था जिसमें दलित्स बिल्कुल सेंटर में रहते थे, ताकि जब भी आसपास सबको ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से उनको बुला लें। तो ये भी एक सिस्टम था, 2 तरह के सिस्टम्स थे। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ शी टॉक्स अबाउट। सती, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, द वाइट मैन सेव्ड ब्राउन विमेन फ्रॉम ब्राउन मैन। जो सती प्रथा थी ना, उसको जो यूरोपियंस थे उनने कैसे प्रोजेक्ट किया था कि वी सेव्ड ब्राउन विमेन फ्रॉम ब्राउन मैन, कि हमने तुम्हें तुम्हारे ही आदमियों से बचाया। ठीक है, बचाया तो था ही, लेकिन अब वो जो प्रोजेक्शन था वो उस तरह का था कि क्योंकि यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व थे, वट एवर इट वॉज, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द वाइट मैन्स बर्डन। ओके, इट वॉज समथिंग दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड एट दैट टाइम। दस ट्राइड टू जस्टिफाई कॉलोनाइजेशन। जब उनसे पूछा गया ना कि कॉलोनाइजेशन क्यों करना है, और क्योंकि यहाँ भी फ्रीडम के लिए बहुत सारे चीज़ें हो रही थी ये सब, तो दे ट्राई टू सपोर्ट ऑल दीज थिंग्स। दे यूज्ड ऑल दीज थिंग्स टू जस्टिफाई देयर कॉलोनाइजेशन हियर। Eurocentric knowledge is not innocent. Criticized Foucault and Deleuze for doing epistemic violence by projecting Eurocentric knowledge to third world countries. तो गायत्री स्पिवाक ने इन सबको एक तरह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि do not force your values here because your values are not all good. Okay, it cannot be like that. We also have our culture and it is not innocent. Eurocentric knowledge is not very or extremely innocent. Criticism of essential ideologies. Uses Marxist ideologies to criticize leftists and says that leftists have negative impact on the subaltern. तो इन्होंने जो आइडियोलॉजीज़ थी जो मार्क्स की आई थी और यहाँ से आई थी, उनको भी एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं भाई ये यहाँ नहीं चल सकती। मार्क्स की जो थ्योरी है वो पैसे के ऊपर बेस्ड है, यहाँ जो है पैसे से मतलब नहीं है, गरीब भी होगा तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी इफ़ ही बिलोंग्स टू अ हायर कास्ट। सो शी ऑल्सो सेड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। So next slide is post-colonialism as literary theory. ये मैंने आपको बता दिया कि लिटरेरी थ्योरी की तरह जब हमें पढ़ना है तो क्या क्या करना है, वही चीज़ है। Post-colonialism is a critical approach to study the representation of different races in European writings on Africa and Asia. तो एक क्रिटिकल अप्रोच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से डिफरेंट रेसेस रिप्रेजेंट की गई हैं। जब हमने पढ़ा किसी टेक्स्ट को तभी हमें पता चला कि भाई इसमें यूरोसेंट्रिज्म बहुत ज़्यादा है, या इसमें ओरिएंटल्स को एक्जॉटिक अदर की तरह दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा बार बार देखने को मिला। देन वी सॉ दैट देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप दैट दे आर फॉलोइंग। पावर पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि इस तरह की चीज़ों से पावर पॉलिटिक्स हुई। पावर पॉलिटिक्स मतलब कई लोगों ने जस्टिफाई किया, जैसे अमेरिका और फिलिपिन वॉर। ठीक है, ये चीज़ें। रेशियल एटीट्यूड्स इन यूरोपियन हिस्टोरिकल पीरियड्स, किस तरह के रेशियल एटीट्यूड्स थे उस समय प्रेजेंट, किस तरह से इंडियंस को ट्रीट किया जाता था, क्योंकि फिर हमें पता चलता है ना कि ये लोग स्लेव बना लेते थे, स्लेव ट्रेड और ये सब चीज़ें भी इसी में आ गई। तो रेशियल एटीट्यूड्स, और ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट हिटलर। ठीक है, रिमेंबर दैट। द कल्चरल एनकाउंटर बिटवीन कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड, द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन सोसाइटी, कल्चर एंड थिंकिंग ऑफ पीपल, कि कॉलोनियल रूल का सोसाइटी पे, कल्चर पे, लोगों की थिंकिंग पे क्या असर पड़ा। कुछ लोगों को वो चीज़ें सही लगी, कुछ लोगों को गलत लगी। अब आज ज़्यादातर मास ऐसा है जो वेस्टर्न नॉलेज और वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो कर रहा है, कई सारा मास वेस्टर्न लोगों में ऐसा है जो यहाँ की चीज़ों को फॉलो कर रहा है, पर अभी भी उनके लिए ये चीज़ें एग्जॉटिक हैं। योगा हो गया और ये बुद्धिज़्म हैं और जेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, दे कंसिडर इट वेरी एग्जॉटिक, और है ना, तो वो है अभी भी, बट अगेन इट इज़ इन सम काइंड एग्जिस्ट्स इन अ लिबरल वे। ठीक है, वी कैन से दैट एटलीस्ट। एनालाइजेज द लिटरेचर अफेक्टेड बाय द इम्पीरियल प्रोसेस, और लिटरेचर को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एज लिटरेरी थ्योरी समझ रहे हैं ना हम, तो इट ऑल्सो एनालाइजेज द लिटरेचर दैट इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय द इम्पीरियल प्रोसेस। जो वो हो रहा था उन सब की वजह से लिटरेचर पे क्या इफेक्ट पड़ा। कई बार हम देखते हैं कि जो यहाँ के राइटर्स अब जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जो हिंदी वाले लिख रहे हैं वो भी देखना इंग्लिश के वर्ड्स, बुक्स ही यूज़ करते हैं, या फिर मूवी ये यूज़ करते हैं, पिक्चर यूज़ करते हैं, चलचित्र तो कोई यूज़ नहीं करता ना।
तो वही लिटरेचर इन रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल डोमिनेशन, कि कॉलोनियल डोमिनेशन के अगेंस्ट जो लिटरेचर हुआ है या जो उसकी वजह से जो लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स डू. फर्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड करना. They aware the reader of representation of non-European people as the exotic, mystic, demonic other by European writers. ठीक है. इसमें देखो वो रीडर को उस तरह के representation से अवेयर कराता है कि नॉन यूरोपियन लोगों को कैसे कैसे प्रेजेंट किया गया. एग्जॉटिक, मिस्टिक, डीमनिक अदर. बिल्कुल डीमनिक मतलब नॉट समवन हु इज़ वेरी गुड, लाइक अ डीमन. ओके, नॉट गॉड. अगेंस्ट like against go someone who is against God by European writers. जैसे जो यीट्स का representation है इस्तानबुल का, उन्होंने इस्तानबुल की जो सिटी है सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम में इस तरह से प्रेजेंट किया है उसको कि बहुत एग्जॉटिक है, मिस्टिक है, सेंशुअल है. वो बोलता है ना गोल्डन बर्ड्स है वहाँ पे और ये है बिल्कुल सोने की बिल्डिंग है और क्या क्या. दे स्ट्रेस ऑन रिक्लेमिंग देयर ओन पास्ट हिस्ट्री एंड कल्चर. और अपना पास्ट, अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर उसको रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे. They talk about the influence of the language of colonizer on the colonized, कि इन लोगों की लैंग्वेज भी कितनी हमसे अफेक्ट हुई है वो बताते हैं. They reject the approach of universalizing experience because they believe in plurality of culture. They celebrate hybridity and cultural polyvalency. तो वो सेलिब्रेट करते हैं हाइब्रिडिटी को. They question the European writers' silence on the issue of colonization. जैसे जेन ऑस्टन का जो मैंसफील्ड पार्क है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है इन्होंने कि यूरोपियन राइटर्स क्यों चुप हैं कॉलोनाइजेशन के प्रॉब्लम पे, कि क्या इफ़ेक्ट रहे हैं और क्या है, बल्कि दे उसको एक रोमांटिक वे में और उन सब वे में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. दे शो दे आर कंसर्न विद द पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी. द पिक्चर दिस इज़ अ कार्टून कॉल्ड द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग था ना जिसके टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ था. ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसमें बैठा हुआ है एंड देर इज़ अ सेपॉय, एक छोटा सोल्जर है. अभी देखो जनरली ये एक कार्टून है बट इट शोज मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. द वे द यूरोपियन पीपल हैव ट्रीटेड द पीपल हु वर लिविंग इन इंडिया, द पीपल हु वर द कॉलोनाइज्ड. इसमें देखो ये जो लॉर्ड कैनिंग है इसके फेस पे एक अलग तरह की स्माइल है. ही इज़ कवरिंग द हेड ऑफ दिस सेपॉय. एकदम उसका पूरा सर उसने ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे कि कंट्रोल किया है. ये देखो. और जो ये सोल्जर है ये हंस रहा है पर पूरी तरह से नहीं हंस रहा है. ही इज़ काइंड ऑफ शोइंग हिज टीथ, डजंट नो. ही इज़ नॉट लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द कॉलोनाइजर. कॉलोनाइजर के आईज में सीधे नहीं दिख रहा. किस चीज़ पे देख रहा है? जो उनका डिस्टेंस है उस पर देख रहा है. जैसे एक डॉग होता है ना, कभी आप उसके सर पे ऐसे हाथ रखो तो सामने देखता है, आपको ऐसे हमेशा नहीं दिखेगा, देख भी सकता है पर जनरली इट लुक्स एट द डिस्टेंस कितना है. ही इज़ अवेयर कि ये व्यक्ति मुझे हार्म कर सकता है अभी भी. ही इज़ कॉन्स्टेंटली अवेयर. अगर अपने डॉग को ऐसे करोगे ना तो वो क्या होगा, एकदम से अवेयर हो जाएगा. ही इज़ दैट मच कॉन्शियस. द सेम वे दिस सेपॉय इज़ काइंड ऑफ गिल्टी जैसा लग रहा है उसका फेस, है ना, जैसे उसने कुछ गलत किया है. उसकी जो स्वॉर्ड है उसमें से देखो ब्लड ड्रिप कर रहा है थोड़ा थोड़ा. उसका एक लेग जो है वो उसमें से पैंट भी ऊपर करके रखी हुई है उसने. और यहाँ जो ये व्यक्ति है दूसरा, ये लॉर्ड कैनिंग जो है वो आराम से बिल्कुल बैठा हुआ है. वो बैठा है फिर भी उससे ज़्यादा ऊंचा है और ये खड़ा है सोल्जर, फिर भी ये क्या है, इससे छोटा है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द स्टेटस कि क्या उसका स्टेटस है. द वे ही इज़ लुकिंग एंड काइंड ऑफ स्माइलिंग एज इफ ही हैज़ कंट्रोल्ड हिम. यहाँ पे इसको पता है कि ये जो इसने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा है ये चाहे तो मुझे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. और पूरा कवर किया हुआ है एज इफ ही इज़ गोइंग टू किल हिम इफ़ ही डज समथिंग रॉन्ग और समथिंग दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द कॉलोनाइजर. तो ये एक कार्टून था जो पंच नाम के एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था बहुत पहले एंड इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड. नेक्स्ट स्लाइड इज सेलिंग टू बाइजेंटियम. मैंने इसके बारे में बात की थी तो मैंने इसलिए इसके लास्ट में डाल दिया है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट न्यू कॉलोनियलिज्म. न्यू कॉलोनियलिज्म ने आपको बता दिया इट इज़ अबाउट कल्चरल इम्पीरियलिज्म. व्हेन यू ट्राई टू मेक योर कल्चर सुपीरियर बाय जस्ट पॉपुलराइजिंग इट through social media or something else. So next is big companies dominating the market. This is also neocolonialism. Global influence, it is also a form of neocolonialism, but it is like we can also do that. If they are doing it, we can also export our goods, okay, and people are doing that.
एंड वर्ल्ड फाइनेंशियल कंपनीज. एप्पल यहाँ स्टोर खोलते जा रहा है रोज़ के रोज़. So this is all about post-colonialism. Thank you so much. Please like, share and subscribe.